Good afternoon, my dear students. Myself, Dr. Girish Goyal, Assistant Professor, Department of Agronomy, School of Agriculture, IIT University, Gwalior. Students, I hope you all are good and stay at home safely. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे. Students, today I am going to start our subject Principle and Practices of Water Management, first semester MSc Soil Science and Agricultural Chemistry. Students, so let's start our topic about major irrigation projects part 1. Students, I will introduce all major irrigation part 1, part 2. This part 1, next part 2 आएगा. So students, I will introduce all content one by one. And first introduction, second irrigation projects, then references. So students, before starting the topic, I want to tell you about some introduction of major irrigation project part 1. Students, irrigation in India includes a network of major and minor canals from Indian rivers, groundwater waste system, tanks, and other rainwater harvesting project for agricultural activities. Students, of this groundwater system is the largest in 2013-14. Only about 36.7% of total agriculture land in India was really irrigated, and remaining two-thirds cultivated land in India is depend on monsoons. 65% of the irrigation in India is from groundwater. Students, currently about 51% of the agricultural area cultivating food grain is covered by irrigation. Students, Indian government launched a demand side water management plan costing in 6,000 crore and USD 854 million crores, 850 water stations in village of 78 districts in 7 states like Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh. Students, over 5 years from 2021, 2022 to 2026-27, with the view to harvest rainwater, enhance water table water recharge rate with village panchayat level water management plans. Students, most of the canal irrigation is in the canal network of Ganges, Yamuna basin, mainly in the state of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. Somewhat in Rajasthan and Bihar, while small local canal networks also exist in the south in Tamil Nadu, Karnataka and Kerala, etc. The largest canal in India is Indira Gandhi Canal, which is about 650 km long. Students, India has an ambitious river linking national project to enhance the coverage of canal irrigated area, reduce flood and water shortage. So, students, भारत में सिंचाई में भारतीय नदियों से प्रमुख और मामूली नहरों का एक नेटवर्क है. स्टूडेंट्स, मैं इसको इंग्लिश में आपको हिंदी में भी समझा रहा हूँ ताकि आपको दोनों में समझ में आए जैसे आप लोगों की डिमांड होती है. ओके स्टूडेंट्स, भूजल अच्छी तरह से आधारित प्रणाली टैंक और कृषि गतिविधियों के लिए अन्य वर्षा जल संचयन परियोजनाओं में शामिल है.
स्टूडेंट्स, इनमें से भूजल प्रणाली सबसे बड़ी मानी है या बड़ी है। स्टूडेंट, 2013-14 में भारत में कुल कृषि भूमि का केवल 36.7% भूमि में सिंचाई की गई थी और शेष 2/3 खेती योग्य भूमि मानसून पर निर्भर है। स्टूडेंट्स, भारत में 65% सिंचाई भूजल से होती है। वर्तमान में लगभग 51% कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न की खेती सिंचाई द्वारा कवर की जाती है। स्टूडेंट्स, भारत सरकार ने 76 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 8350 जलयुक्त गांवों में इनर 6000 करोड़ या $854 मिलियन की लागत वाले एक मांग पथ जल प्रबंध योजना का शुभारंभ किया, जो 2021 से 2022 से 5 वर्षों में अधिक है। स्टूडेंट्स, वर्ष 2026 से 27 तक वर्षा जल संचयन की दृष्टि से ग्राम पंचायत स्तरीय जल प्रबंधन योजनाओं के साथ जल तालिका पर जल पर निर्भर दर से वृद्धि है। स्टूडेंट्स, भारत में सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है। सबको पता है स्टूडेंट्स, मोस्टली आपके जनरल नॉलेज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। भारत में सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है। एक परियोजना चली थी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसे बोलते हैं, जो लगभग 650 किलोमीटर लंबी है। स्टूडेंट्स, भारत में नहर सिंचित क्षेत्र की कवरेज बढ़ाने, बाढ़ और पानी की कमी को कम करने के लिए राष्ट्रीय परियोजना को जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी नदी है। सो स्टूडेंट, दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पार्ट 1। ओके, सो नेक्स्ट कंटेंट है स्टूडेंट्स इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, in India, irrigation has always been the largest user of water. Irrigation project mainly consist of engineering structure which collect, convey and delivers water to areas of which crop are grown. Students, agricultural establishment capable of applying controlled amount of water to land to produce crops are called irrigation projects. Students, always mainly consist of engineering structure which collect, convey, delivery of water to areas on the which crop are grown. स्टूडेंट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट भारत में सिंचाई हमेशा पानी का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता रहा है। सिंचाई परियोजनाएं मुख्य रूप से इंजीनियरिंग संरचनाओं से मिलकर बनती हैं, जो उन फसलों को बनाती हैं, उन क्षेत्रों में पानी पहुंचाती हैं जिन पर फसलें उगाई जाती हैं। दिस इज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसेंशियल कंडीशंस फॉर सक्सेस ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ओके, सिंचाई परियोजनाएं की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, suitability of land for agriculture. Second है favorable climatic conditions for proper growth and yield of crop. Adequate and economic supply of suitable quality of water. Next, good site conditions for
hydraulic structure for operations. स्टूडेंट्स, कृषि के लिए भूमि की उपयोगकर्ता। नेक्स्ट है फसल की उचित वृद्धि और उपज के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियाँ। नेक्स्ट, पानी की उपयुक्त गुणवत्ता की पर्याप्त और आर्थिक आपूर्ति। नेक्स्ट है संचालन के लिए हाइड्रोलिक संरचनाओं के लिए अच्छी साइट की स्थितियाँ। So student, this is essential conditions for success of irrigation projects. Okay. Next content, students. Okay. Irrigation project. Students, irrigation project. Irrigation project are classified in different ways. Students, सिंचाई परियोजनाओं की विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। कैसे कैसे, आइए देखते हैं। बेस ऑन कल्चर कमांड एरिया मीन्स CCA मीन्स कल्चर कमांड एरिया, ठीक है। अंडर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, तो फर्स्ट है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, major irrigation project. Okay, the area in which to be covered under irrigation is of the order over 10,000 hectare. Culture command area greater than 10,000 hectare. This type of project consists of storage, reverse flow, division structure and a large network of canals. These are often multi-purpose projects serving other aspects like flood control and hydropower. Okay, so this is major irrigation project. Students, क्या होता है प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं? मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की परिकल्पना 10,000 हेक्टेयर CCA यानी कल्चर कॉमन कमांड एरिया 10,000 हेक्टेयर से अधिक की है। इस तरह की परियोजनाओं में विशाल भंडारण, जलाशय प्रवाह, मोड़ संरचनाएं और नहरों का एक बड़ा नेटवर्क शामिल है। ये अक्सर बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो बाढ़ नियंत्रण और पनबिजली जैसे अन्य पहलुओं की सेवा करती हैं। दिस इज मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, आइए हम देखते हैं मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट्स मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट हैविंग CCA लेस देन 10,000 hectare but more than 2,000 hectare are classified as medium irrigation project. These are also multi-purpose surface water projects. Medium-sized storage, diversion and distribution structure are the main components of this type of projects. Students, माइनर इरिगेशन मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट मध्य सिंचाई परियोजना। ओके, CCA वाली परियोजनाएं 10,000 हेक्टेयर से कम की होती हैं, लेकिन 2,000 हेक्टेयर से अधिक को मध्यम सिंचाई परियोजना के रूप से वर्गीकृत किया जाता है। ये उद्देश्य सतह जल परियोजनाएं भी हैं। मध्यम आकार का भंडारण और मोड़ और वितरित संरचनाएं इस प्रकार की परियोजनाएं के प्रमुख घटक हैं। दिस इज मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट projects having
Projects having CCA less than or equal to 2000 hectare are termed as minor irrigation projects. The main source of water are tanks, small reservoirs and groundwater pumping. Students, a number of minor irrigation projects may exist individually within the command are of a major or medium irrigation project. स्टूडेंट्स, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट 2000 हेक्टेयर से कम या उसके बराबर सीसीए वाली परियोजनाओं को लघु सिंचाई परियोजना कहा जाता है। पानी के मुख्य स्रोत टैंक, छोटे जलाशय और भूजल पंप हैं। एक प्रमुख या माध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र के भीतर कई लघु परियोजनाएं व्यक्तिगत रूप से मौजूद हो सकती हैं। So students, this is minor irrigation project. Next, students, based on the way of water application. Okay, आइए हम लोग देखते हैं। ओके, सिंचाई योजनाओं को पानी के अनुप्रयोग के आधार पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन स्कीम, ओके, एंड सेकेंड है लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। ओके, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन स्कीम। ओके, सो स्टूडेंट्स, ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन स्कीम, this is the type of irrigation system in which water is stored at a higher elevation so as to enable supply to the land by gravity flow. Such irrigation scheme consists head work across river to store the water land canal network to distribute the water. स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार की सिंचाई प्रणाली है जिसमें पानी को अधिक ऊंचाई पर संग्रहित किया जाता है ताकि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव द्वारा भूमि को आपूर्ति को सक्षम किया जा सके। इस तरह की सिंचाई योजनाओं में पानी को वितरित करने के लिए पानी और नहर नेटवर्क को संग्रहित करने के लिए नदी के पार कम करता है। सो दिस इज ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन स्कीम। नेक्स्ट स्कीम थी स्टूडेंट्स लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। ओके, आइए देखते हैं लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। स्टूडेंट्स, irrigation systems in which water has to be pumped to the field or canal network from lower elevation are categorized as lift irrigation schemes. स्टूडेंट्स, सिंचाई प्रणाली जिसमें पानी को खेत में डालना होता है और नहर नेटवर्क फार्म को कम ऊंचाई पर लिफ्ट ऊंचाई योजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सो दिस इज लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसी में सम ऑफ द मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ओके, आइए हम ये देखते हैं। स्टूडेंट्स, सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज डेवलप्ड सेवरल मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। सम ऑफ द मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट आर लिस्टेड, ओके, सो इन टेबल। सो स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता के बाद से भारत ने कई प्रमुख सिंचाई योजनाओं का विकास किया है। सिंचाई की कुछ प्रमुख परियोजनाएं तालिका में हैं। स्टूडेंट्स, जो आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, ये मैंने हेडिंग इसलिए दी कि आपको ये सुनकर बड़ी इच्छा जागृत हो ताकि आप नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से सुने, इसको भी सुने। सर ने ऐसे क्या लिस्ट दी है कि सर जैसे नेक्स्ट टॉपिक में बताना चाह रहे हैं। ओके, सो दिस इज रेफरेंसेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, this topic is finished, major irrigation projects part 1. okay, so thank you. I hope आप इसे अच्छे से वीडियो देखें, ओके, ताकि हम आपका वेबिनार आपका अच्छे से समझ में आए, हमारा
इंटरेक्शन हो, स्मूथली हो, नो डाउट। ओके, तो आई होप आप इसे अच्छे से पढ़ें। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।